morning, friends. In today's lecture, we are going to study about liabilities of partners and a partnership firm. In the previous lecture, I told you that partner works on the cardinal principle of mutual agency. Meaning ये है कि every partner is an agent of other partners, and he will bind the partnership firm by all his activity which has been done in the name of partnership firm in the normal course of business. अगर कोई भी काम वो पार्टनरशिप के नाम से करता है और ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करता है, तो अगर उस एक्टिविटी से, उस पार्टनर के एक्टिविटी से अगर कुछ लाइबिलिटी अराइज होती है, तो उस लाइबिलिटी के लिए एंटायर पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन्स all the partners will be equally responsible. We have referred in the previous lecture as regards to express authority and implied authority. और implied authority के लिए यही बोला गया था कि अगर it depends upon the type of the business के हर एक पार्टनर को एक implied authority मिलेगी, और अगर उस implied authority के दायरे में रह के अगर कोई पार्टनर ने कोई एक्टिविटी की है और उससे कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, तो उस लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायर पार्टनरशिप फर्म पे अराइज होगी. लेकिन अगर देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, और उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में अगर आउटसाइडर्स को पता है, तो इन दैट केस द फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्शन 25, section 26 and 27, which says about liability of partner and liability of partnership firm. Turn your screen, you can refer that. This is a flow chart I have given. Just go through that, liability of firm and the partners. We'll try to understand this. The liability of partner to the third party may be divided in three categories. Third party is outsider, that is a supplier, customers, etc. The liability of partner for the act of the firm, section 25. Section 26 is liability of the firm for wrongful act of the partner, and liability of the firm for misapplication by partner, section 27. Misapplication is nothing but misappropriation of money or property of partnership firm. So we'll just get down into the show. Now what is the first one, section 25, liability of the partner for the act of the firm. What does it say? Every partner is liable jointly with all other partners and also severally, that means jointly as well as individually, for all the act of the firm done while he is a partner. जब तक वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, and I told you that even after retirement, if he fails to give the notice, and if he is an active partner and if he fails to give the notice, then that retiring partner will also be responsible for all the act done even after his retirement. यहाँ पे क्या बोला है सेक्शन 25 कि सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो जॉइंट भी है और सेवरल भी है. दैट मीन्स इंडिविजुअली दे विल बी लाइबल, जॉइंटली दे विल बी लाइबल, एंड इफ द डेप्ट ऑफ द फर्म exceeds the assets of the firm, in that case every partner will be individually liable. What it says, the liability of all the partners is unlimited by virtue of joint and several liability. A creditor of the firm has several causes of action. Creditors has number of, he has number of options available. If the partnership firm doesn't pay the amount, because if the partnership firm is, for example, the debts are more than the assets, then that creditors is entitled to file a suit against each and every partner. That means that partner's private state will even be responsible for the purpose of paying off those creditors' debt. He can sue all partners together or can sue them separately in successive action if necessary.
As between the partner themselves, the partners paying more than his share of liability may claim contribution from the other partners according to term of partnership agreement. Suppose there are 4 partners और चारे partners की liability 1-1 लाख रुपए आती है, and all the 4 partners are solvent. तो एक पार्टनर्स ने उसके जेब से 2 लाख रुपए पे कर दिए, किसी और पार्टनर का भी पैसा किसी पार्टनर ने पे कर दिया. फॉर एग्जाम्पल देयर आर A, B, C, D पार्टनर्स एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर फ्रॉम देयर पॉकेट इज ₹1 lakh ईच. तो A has paid ₹2 lakh, 1 lakh for himself and 1 lakh on the behalf of B. So then A is entitled to recover that 1 lakh from the property of B. In order to bring a case under section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of which liability is brought to be enforced against a party must have been done while he was a partner. Obviously, in order to hold any person liable for the debt of the partnership firm, first it should be proved that कि जब वो debt incurred हुआ, वो particular person partnership firm का partner था. अगर वो पर्टिकुलर लायबिलिटी इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अराइज हो रही है, लेकिन पैसा उस वक्त का देना बाकी है जिस वक्त वो पर्टिकुलर पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म एज ऑन टुडे, और पार्टनरशिप फर्म ने किसी आउटसाइडर से 20 लाख रुपए का माल उधार लिया है, और कल जाके मैं अगर रिटायर्ड हो जाता है, इवन इफ आई हैव गिवन अ पब्लिक नोटिस, तो वेदर 20 लाख रुपीस का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट मेरे ऊपर जो लायबिलिटी आती है, क्या उससे भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज वो डेप्ट कब इनकर्ड हुआ है? जब मैं पार्टनर था. जस्ट रिफर दिस एग्जाम्पल. सर्टेन पर्सन्स वेर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर इन अ फर्म व्हेन द एक्ट constituting an infringement of trademark by the firm took place. Infringement का मीनिंग क्या है? कि धोखे से आपने किसी और का ट्रेडमार्क कॉपी किया. तो वो क्या बोल रहा है? Certain person were found to have been partner in a firm when the act constituting an infringement of a trademark by the firm took place. For example, there are 4 partners A, B, C, D. और इन्होंने ये एक्स एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडमार्क कॉपी किया. आगे क्या हुआ? इट वॉज हेल्ड दे वर लायबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ alleged infringement, it being immaterial that the damages aroused after the dissolution of the firm. अब हुआ क्या कि ABCD एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने एक्स एंड कंपनी उसका ट्रेडमार्क चोरी किया, ट्रेडमार्क का चोरी किया. तो एक्स एंड कंपनी ने ABCD के ऊपर क्लेम फाइल किया, सूट फाइल किया, एंड इन द मीनवाइल ABCD गॉट डिसॉल्व. तो क्या ये जो लायबिलिटी है उससे भी ABCD को छुटकारा मिल जाएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि गलती कब की थी, लायबिलिटी कब की है? जब वो चारों पार्टनर थे. डिसॉल्यूशन के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ABCD की जो फर्म थी दे आर लायबल टू पे एक्स एंड कंपनी ₹50 lakhs एज अ कॉम्पेंसेशन. तो हु विल बी लायबल टू पे? ABCD कैन नॉट से दैट दे हैव ऑलरेडी बीन डिसॉल्व, देयर इज नो मोर फर्म. लायबिलिटी कब का है? जब वो पार्टनर्स थे. तो even after dissolution, ABCD will be liable to pay that particular compensation to X and company. So this is a liability of partner as per section 25. What does section 26 says? Whereby liability of the firm for wrongful act of the partner. किसी पार्टनर की गलती हो गई या किसी पार्टनर के गलती के वजह से, नेग्लिजेंस के वजह से अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है, प्रोवाइडेड इट शुड बी रिलेटेड विद द नॉर्मल बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट शुड बी इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. In that circumstances, entire firm will be responsible. What does it say? Whereby the wrongful act or omission of a partner
in the ordinary course of business of a firm whereby wrongful act or omission of the partner, यानी किसी पार्टनर के गलती के वजह से या नेग्लिजेंस के वजह से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, कब? जब फर्म की रेगुलर एक्टिविटी करते वक्त अगर किसी पार्टनर की गलती हो जाती है और उस गलती के वजह से अगर कुछ नुकसान अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द पार्टनर जो कस्टमर से पैसा कलेक्शन करके ला रहा है और रास्ते में उस पार्टनर का बैग चोरी हो जाता है उसके नेग्लिजेंस के वजह से या वॉट एवर इज अ रीजन, तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक पार्टनर की गलती के वजह से फर्म का नुकसान हुआ, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? एंटायर पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। Or with the authority of his partner, loss or injury is caused to any third party, any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. पार्टनर कस्टमर से पैसा एडवांस लेके आ रहा है, माल बाद में सप्लाई करने वाले थे और एडवांस पैसा लाया, रास्ते में पैसा चोरी हो गया, तो वो पार्टनर जो कलेक्शन करके ला रहा था तो वो पार्टनर को अथॉरिटी बाकी के पार्टनर्स ने दी थी, सो ही वॉज वर्किंग विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इवन दो व्हाट डज इम्प्लाइड अथॉरिटी सेज कि इट इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स टू मेक अ कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, तो वन ऑफ द पार्टनर वॉज मेकिंग अ कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, ड्यूरिंग द ट्रांजिट द एंटायर अमाउंट हैज बीन गॉट थेफ्ट, चोरी हो गया, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले पार्टनर की रहेंगी? आंसर इज नो। इस सर्कमस्टेंसेस में द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फॉर द एंटायर फर्म। कस्टमर तो क्या बोलेगा, हमने 1 लाख रुपए एडवांस दिया, हमें माल चाहिए। बाकी के पार्टनर्स कैन नॉट से दैट कि आपने जिसको पैसा दिया था वो चोरी हो गया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। फर्म विल हैव टू सप्लाई द गुड्स वर्थ रुपीज सो एंड सो एडवांस टेकन फ्रॉम द कस्टमर, दे विल हैव टू सप्लाई दोज गुड्स। So who has to bear the loss? The entire firm has to bear the loss. That's what section 26 says. Analysis of section 26. The firm is liable to same extent as the partner for any loss or injury caused to a third party by the wrongful act of the partner if they are done by the partner while acting in the ordinary course of the business and with the authority of the partners. That means which is within the implied authority of partners. किसी पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर वो काम कर रहा है और उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके वजह से एज पर सेक्शन 26 एंटायर फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। फर्दर व्हाट इट सेज, thus all the partner in a firm are liable to a third party for a loss or injury caused to him by negligent act of a partner acting in the ordinary course of business. What is very important is that particular activity should be done in the ordinary course of business. Ordinary course of business का मीनिंग क्या है? जो डे टू डे एक्टिविटीज है, तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज से कुछ अलग नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड चाहिए। रोज लेन देन करते हैं, रोज माल उधारी में बेचते हैं, रोज पैसा कलेक्ट करके लाते हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द। यही काम काज करते वक्त अगर कोई नुकसान अराइज हो जाता है तो ये नुकसान की भरपाई पूरी पार्टनरशिप फर्म बेयर करेंगे। Example, one of the two partner in the coal mine acted as a manager and was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of mine properly fenced. As a result thereof, an injury was caused to the workman. The other partners were held responsible for the same. Now just try to understand the example what they have given. I hope you are aware with what is a coal mine. Coal mine क्या होता है कि आपको नीचे जाना पड़ता है, बराबर, बीनीथ द अर्थ, यू गो बीनीथ द अर्थ। तो एक लिफ्ट के जैसा कुछ चीज रहता है जो नीचे जाता है, जैसा जनरली यू हैव सीन द लिफ्ट, बिल्डिंग में लिफ्ट रहती है वो ऊपर नीचे होती है, उसी तरह कोल माइन के अंदर भी एक लिफ्ट के तौर पे एक बॉक्स बना हुआ रहता है जिसमें सभी वर्कर्स जो है काम करने के लिए ये जो है वो नीचे जाती है, ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है वो नीचे जाता है।
और नीचे पूरा यहाँ पे कोल रहता है जिसको कलेक्ट करके ऊपर लाया जाता है। ना हुआ क्या कि ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स वो बराबर तरीके से उस बॉक्स का फेंसिंग नहीं किया था। फेंसिंग का मीनिंग क्या है? वो बॉक्स की जो वॉल है वो बराबर तरीके से उसको मजबूत बनाया नहीं गया था। तो क्या हुआ कि ये जब बॉक्स, ये जो लिफ्ट का बॉक्स है वो जब नीचे गया तो फेंस खुल गया और जो भी मड था, ये जितना भी आजू बाजू में मड था, वो सभी ये एम्प्लॉइज के ऊपर जो है वो आ गया और ये एम्प्लॉइज इस मड के नीचे दब के कुछ एम्प्लॉइज का नुकसान हो गया, कुछ एम्प्लॉइज मर गए। तो यहां पे एक पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये जो फेंस है इसको आपको बराबर, ये जो बॉक्स है उसको बराबर फेंसिंग आपको करना है, ये काम दिया गया था। बट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर ये फेंस खुल गया, ये बॉक्स खुल गया और ये नुकसान हो गया। तो क्या अकेला दैट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो आंसर इज नो। ये जो भी एम्प्लॉयज का नुकसान हुआ है वो पूरी की पूरी कॉम्पेंसेशन हैज टू बी बोर्न बाय एंटायर पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर के नेग्लिजेंस के वजह से अगर नुकसान हुआ है और वो नॉर्मल एक्टिविटी करते वक्त हुआ है, अगर वो एम्प्लॉय ने अपनी ड्यूटी बराबर नहीं निभाई और उसके वजह से नुकसान हो गया, जैसे यहां हुआ है, वो लिफ्ट के बॉक्स को बराबर उसने फेंस नहीं किया और वो बैक बॉक्स खुल गया और एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा का पूरा कोल आ गया और वो दब गए और मर गए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बेयर करेगा? क्या वो अकेला पार्टनर बेयर करेगा? आंसर इज नो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फॉल ऑन द एंटायर पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म विल हैव टू पे द कॉम्पेंसेशन टू द सक्सेसर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉइज के विडो वगैरह रहेंगे उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा और कौन देगा? पूरी पार्टनरशिप फर्म। फाइन, दैट इज व्हाट अ सेक्शन 26 says. Further, what about section 27? Liability of firm for misapplication by partner. अगर पार्टनरशिप फर्म का कुछ पैसा या एसेट मिस अप्लाई करता है या मिस अप्रोप्रिएट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्टनरशिप फर्म पे आएगी। अब ये दो तरीके का मिस एप्लीकेशन हो सकता है। नंबर 1, किसी से एडवांस कोई पार्टनर ने लिया और बाहर के बाहर उसको मिस अप्लाइड कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, लेके भाग गया, चोरी कर लिया। किसी कस्टमर से एडवांस लेके आ रहा है, पैसा बाहर के बाहर मिस अप्लाइड कर लिया। या फिर कुछ पैसा पार्टनरशिप फर्म ने एडवांस लिया है कस्टमर से और किसी पार्टनर ने चेक पे साइन करके वो विड्रॉ कर लिए पैसे और उसको मिस अप्लाइड कर लिए, मिस अप्रोप्रिएट कर लिए। दोनों सर्कमस्टेंसेस पैसा बाहर के बाहर मिस अप्लाइड करो या फिर पहले फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा आने दो और उसके बाद उसको मिस अप्लाइड करो। इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। व्हाट डज सेक्शन 27 says? Where a partner acting within his apparent authority, acting within his apparent authority is nothing but within his implied authority, receives money or property from a third party, receives money or any property in the sense it can be a movable property received on the behalf of a partnership firm from an outsider and misapplies it. पार्टनर ने बाहर वाले से कुछ पैसा लिया या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ली और उसको मिस अप्लाइड कर दिए, या फिर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव मनी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। दोनों केसेस में कोई पार्टनर बाहर वाले से बाहर के बाहर पैसा लेता है इन द नेम ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मिस अप्लाई कर लेता है, या फर्म कुछ पैसा बाहर वाले से लेते हैं और उसमें से कोई एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स उसको विड्रॉ करके मिस अप्लाई कर लेते हैं।
in both the cases, what it says, the firm is liable to make good the loss. It does not make any difference के पार्टनर ने बाहर के बाहर पैसा मिस अप्लाई किया है या फर्म में पहले पैसा आने दिया और उसके बाद उसको मिस अप्लाई किया. दोनों केसेस में फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल. What it says, the firm would be liable in both the cases. The firm would be liable in both the cases. But if the receipt of money by one partner is not within the scope of his apparent authority, अगर किसी पार्टनर के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है, अगर उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन डाला है कि आप पैसा वसूल नहीं कर सकते, बाहर वाले से आपको पैसा नहीं लेना है. आगे क्या बोल रहा है? His receipt cannot be regarded as a receipt by the firm and the other partners will not be liable unless the money received come into their possession or under their control. यानी इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन डाला है कि आप बाहर वाले से पैसा नहीं ले सकते, प्रोवाइडेड ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में आपने आउटसाइडर को बताया है कि ये मिस्टर एक्स अगर आपके पास पैसा लेने आते हैं तो उनको आपको एडवांस नहीं देना है, क्योंकि हमने पैसा रिकवरी की जिम्मेदारी मिस्टर वाई पे डाली है. तो वाई आएगा तो ही उसको पैसा देना है, नहीं तो किसी और पार्टनर को नहीं देना है. यानी आपने बाहर वाले को इन्फॉर्म कर दिया, फिर भी बाहर वाले ने एक्स को एडवांस दे दिया, तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. व्हाट इट सेज, ए, बी and C are partners of a place for car parking. P stand his car in a parking place, but A sold out the car to a stranger. क्या हो रहा है? एक पार्किंग लॉट में एक बंदे ने कार पार्क करके गया, उसमें से एक पार्टनर ने उसकी गाड़ी बेच डाली. Firm will be responsible. Obviously, partnership firm will be responsible. For this liability, the firm is liable for the act of ए की गलती के वजह से पूरी पार्टनरशिप फर्म को लॉस बेयर करना पड़ेगा. नाउ द राइट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडीज, अ ट्रांसफरी, राइट ऑफ ए ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर इंटरेस्ट. नाउ आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, उसमें एक था सब पार्टनर, उसी तरह एक है आपका ट्रांसफरी. Now there are two people, one is a transferor and one is a transferee. Now the thing is, sometimes what happens कि किसी पार्टनर को बाहर वाले को पैसा देना बाकी रहता है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी है. सपोज आई एम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और मुझे मेरी पर्सनल लायबिलिटी है किसी आउटसाइडर को आई हैव टू पे रुपीज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख. तो व्हाट आई कैन डू, वो आउटसाइडर मेरे ऊपर घड़ी घड़ी तकाजा कर रहा है, घड़ी घड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका पैसा मैं उसे लौटा दूं. तो आई टोल्ड हिम दैट कि पूरे 5 लाख रुपए मैं एक साथ आपको नहीं दे सकता. ये पार्टनरशिप फर्म में मैं काम करता हूं, यहां से जो भी मेरा प्रॉफिट का शेयर निकलेगा, जो भी कमीशन निकलेगा, दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो जो भी प्रॉपर्टी में मेरा शेयर निकलेगा, दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. दैट मीन्स आई एम अ ट्रांसफरर and that outsider to whom I am giving this right with the consent of all the partners, provided I will have to obtain the consent of all the partners कि ये मैं अपने rights outsiders को transfer करना चाहता हूँ. तो वो outsiders को you will call it as a transferee. I will be called as a transferor and he will be called as a transferee to whom I am transferring my interest in a partnership firm. And that person will be, I will be a transferor and he will be a transferee, provided I will have to obtain the permission of the all the partners. Without permission of the partners, I cannot transfer my interest to the transfer. What does section 29 says? A transfer by a partner of his interest in the firm, of his interest in the firm यानी जो भी उसका फर्म से निकलता है लेना, either absolute or by mortgage or by creation by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee during the continuation of the firm to interfere in the conduct of the business
or to require accounts or to inspect the books of accounts of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profit of the transferring partner, and the transferee shall accept the account of profit agreed by the partner. Meaning what? कि चलो सभी पार्टनर को मैंने बता दिया कि इस पार्टनर को, इस आउटसाइडर को मुझे 5 लाख रुपए देना है, तो मेरा जो भी प्रॉफिट का शेयर या जो भी कमीशन निकलेगा, तो आई वांट दैट कि वो कमीशन और वो प्रॉफिट शुड गो टू दैट आउटसाइडर, दैट ट्रांसफरी. दैट मीन्स मेरे पूरे प्रॉफिट के शेयर के ऊपर मैं उस ट्रांसफरी का चार्ज लगा दे रहा हूं यानी लेन. जो भी मेरा पैसा निकलेगा उस पे किसका हक रहेगा? वो आउटसाइडर का हक रहेगा, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर. दैट मीन्स विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स आई हैव अपॉइंटेड दैट थर्ड पार्टी एज अ ट्रांसफरी पार्टनर. तो इस सेक्शन क्या बोलता है? नो डाउट यू हैव अपॉइंटेड अ ट्रांसफरी पार्टनर, बट ट्रांसफरी विल बी ऑलवेज एन आउटसाइडर. I am a main partner. I am a transferer. I am a main partner. I am one of the partner. जो कुछ मुझे देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है या जो भी मुझे करना है, वो मेरे राइट से. Though I have transferred the interest to the outsider, that transferee cannot claim my rights in the partnership. यानी वो उसका काम क्या है? सिर्फ कि जो मेरा शेयर पार्टनरशिप फर्म से निकलता है, पार्टनरशिप फर्म चुपचाप वो शेयर उसको देगा, उसको लेके जाना है. ही कैनॉट क्वेश्चन दैट. ही कैनॉट आस्क द अदर पार्टनर्स कि आपने जो शेयर कैलकुलेट करके दिया है, आई वांट टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट ट्रांसफरी कैनॉट क्वेश्चन. आई कैन क्वेश्चन, ही कैनॉट क्वेश्चन. ही कैनॉट आस्क द अदर पार्टनर्स कि आपने जो सपोज मुझे 50,000 रुपीज दिए, वो किस हिसाब से कैलकुलेट किए. मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, तो ही कैन नॉट इंटरफियर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. ही कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट. व्हाट डज इट सेज? इफ द फर्म इज डिसॉल्व और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, दैट मीन्स या तो फर्म डिसॉल्व हो गई या तो फिर मैं उस पार्टनरशिप फर्म से अगर निकल गया, तो ट्रांसफरी का क्या राइट्स है? द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड, एंड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेन दैट शेयर टू अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. अगर मैं उस पार्टनरशिप फर्म से निकल जाता हूं या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो देन दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर विल हैव अ राइट कि डिसोल्यूशन के बाद के अकाउंट्स, डिसोल्यूशन के पहले के अकाउंट्स वो चेक नहीं कर सकता. डिसोल्यूशन के बाद के, यानी अगर डिसोल्यूशन के बाद के इन द सेंस क्या होता है कि डिसोल्यूशन इज नॉट आई मीन एक्सरसाइज ऑफ अ डे और टू. सपोज आज मैंने बोला कि अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है, इट डजंट मीन दैट कि वो एक दरवाजा है उसको बंद कर दिया, सब अपने अपने घर चले गए और फर्म डिसॉल्व हो गई. इट्स नॉट लाइक दैट. Suppose we have decided that I have given the notice of dissolution on 12th September. तो dissolution के बाद there are certain formalities to be completed. That formality cannot be completed within a day or two. Formalities in the sense कुछ स्टॉक आपके पास बकाया है, उसको बेचना पड़ेगा, वो बेच के पैसा रिसीव करना पड़ेगा. कस्टमर्स को जो आपने उधारी में माल बेचा है वो पैसा वसूल करना पड़ेगा, पूरा पैसा रियलाइज करना पड़ेगा. एसेट जो है आपके पास वो सेल करने पड़ेंगे, वो जितना पैसा कलेक्ट होगा उसमें से क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा, और फिर जो सरप्लस बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. तो एंटायर एक्सरसाइज विल टेक आइदर अ मंथ और 2 और मोर देन 2 months. तो आज अगर मैंने 12 सितंबर को बोला कि द फर्म हैज टू बी डिसॉल्व, तो आज से आगे के जो अकाउंट्स है, सपोज इट टेक्स फॉर एग्जाम्पल 4 months टू कंप्लीट ऑल दिस फॉर्मेलिटीज. Sale of assets, sale of stock, collection from debtors, payment to creditors and पैसा जो सरप्लस रहेगा, ये सब एक्टिविटी को करने के लिए आज से 4 महीने लग गए. तो आज से आगे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ट्रांसफरी को चेक करना है तो वो कर सकता, लेकिन आज से पहले के अकाउंट वो चेक नहीं कर सकता. आज से आगे के अकाउंट्स जितना भी स्टॉक बेचा, डेटर्स से पैसा कलेक्ट किया, क्रेडिटर्स को पे किया, सरप्लस रियलाइज हुआ, और सरप्लस का जो भी शेयर वो ट्रांसफरर का यानी मेरा पार्ट निकलता है वो ट्रांसफरी के हाथ में दे दिया, तो ट्रांसफरी बोलता है कि मुझे चेक करना है, तो वो
12 सितंबर के आगे के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, लेकिन पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट वो चेक नहीं कर सकता। यानी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म उस ट्रांसफरी को पैसा देगा, ट्रांसफरी को चुपचाप वो पैसा लेके अपने घर पे जाना है। वो ये नहीं बोल सकता है कि मुझे चेक करना है हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द शेयर ऑफ ट्रांसफरर एंड यू आर गिविंग टू मी। क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, वो ट्रांसफरी नहीं कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रांसफरी पार्टनर। क्लियर विद दिस? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट टुडे। टुडे वी हैव डन विद 4 sections. First one is section 25. Liability of partner for the act of the firm. Section 25 says that सभी partners की liability joint as well as several, that is individual. Liability of the partners will be unlimited. Section 26 क्या बोलता है? Liability of the firm for wrongful act of the partner. अगर partner के negligence के वजह से कोई एक्टिविटी में नुकसान हो जाता है और वो एक्टिविटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है और पार्टनरशिप फर्म के नाम से है, तो उस लायबिलिटी की जिम्मेदारी सभी पार्टनर्स पे यानी पार्टनरशिप फर्म पे आएंगी। और सेक्शन 27 क्या बोलता है? लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर कुछ पैसा मिस अप्लाई कर लेता है, बाहर मिस अप्लाई करता है या फिर फर्म में आने के बाद उसको मिस अप्लाई करता है, मिस अप्रोप्रिएट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी पूरी पार्टनरशिप फर्म पे आएंगी। एंड लास्ट वन वी हैव सीन राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। व्हाट वी हैव सीन कि ट्रांसफरी जो है वो बिजनेस के डे टू डे वर्किंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट को या फिर बिजनेस के डे टू डे वर्किंग को चेक नहीं कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। हाउएवर आफ्टर डिसॉल्यूशन that transferee will have a right to verify the books of account, but those books of account can be checked for the period after dissolution and up to the completion of dissolution, but not before the dissolution. So this is all about today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture and understood the concept. Bye.